Guys, what's up? Welcome or welcome back to our YouTube channel and welcome back to a new video. So it's been ages since I've done this video, and that's the ultimate Q&A where you guys ask me questions and I'll answer all of those. So I had recently put up this story on my Instagram where I asked you guys to ask me questions, and I got many questions, and maximum questions were kind of the same niche or the same area. So I've combined and picked out the questions which are really common amongst you all. So I thought to answer those in this video. So without further ado, let's get right into the video. So the first question which everybody asks me in literally every Q&A is that where do I edit my videos? So I edit my videos on Filmora. It is the laptop wala version and I use it. It's a paid version but quite worth it because it has all the effects and all those things. So हमने एक yearly subscription उसका लिया है. So that is the app which I use for editing. And then the next one is, what is your favorite way to spend time with your family? So spending time with my family is in all my favorite thing to do because maybe weekends or some holidays, I always love to spend time with my family rather than going out. So it's either like picking up a destination or going out or playing Ludo. Yes, playing Ludo is gonna be my favorite time to spend with my parents because Ludo ऐसा game है, we literally are rivalries in Ludo. मतलब हम तीनों ऐसे इतने competitive हो जाते हैं ना एक दूसरे को हराने के लिए, और बहुत मजा आता है. कभी कभी मैं पापा टीम अप कर लेते हैं, कभी मैं मम्मी टीम अप कर लेते हैं, कभी we are playing solo. So it's a very fun game to play together. So that is what we love to do together as a family. So the next question is that, are you preparing for any competitive exam? So yes, I am preparing for various competitive exams because 12th के बाद वही एक काम होता है जो करना होता है, and it is quite important. Not necessary कि आपको एक ही के लिए prepare करना ज़रूरी है. You should prepare for many because अगर मान लो एक में नहीं होता है, so you should have many backup options. So I'll basically prepare. My primary goal is JEE, of course. I'm preparing for JEE and boards, and then I'll prepare for the Maharashtra ka CET, and there are many more, like बहुत लंबी list है, but yeah, the basic ones are CET and JEE. Okay, the next question is that how do you plan your week ahead or like the upcoming months too? So प्लानिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, थिंग्स आर वेरी स्पॉन्टेनियस, बट आई हैव अ ब्रीफ प्लान इन माई माइंड कि मानो देयर आर अ फ्यू इवेंट्स और अ फ्यू मेजर थिंग्स विच आई हैव द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक. ऑब्वियसली अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसका इन्फॉर्मेशन प्रायर मिलता है, तो आई लाइक टू नोट इट डाउन ऑन द कैलेंडर, हाईलाइट करके अच्छे से, एंड आई लाइक टू पुट अ रिमाइंडर ऑन इट सो दैट आई डोंट प्लान एनीथिंग एल्स ऑन दैट डे. और एल्स फॉर वीकली प्लान्स आई लाइक टू डू इट ऑन अ स्टिकी नोट, मे इट बी योर एप्लीकेशन ऑन योर फोन, एनीथिंग इज गुड. मतलब यू शुड कीप योर टास्क वेरी रियलिस्टिक. ये नहीं कि आप दिन में 6-7 चीज़ें कर रहे हो, यू राइट इट डाउन एंड यू एक्सपेक्ट दैट यू डू इट. इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल. तो जितने रियलिस्टिकली टास्क पॉसिबल हो सकते हैं या जो मुझे करना है, दैट आई मेक एंड आई राइट इट डाउन बिकॉज लिखने से मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है. ऐसे कट करना, ऐसे लाइन बना के, दैट इज द मोर सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर मी. सो दैट इज हाउ आई प्लान माई वीक. एंड मंथ में जनरली इतना प्लान नहीं करती, बट मतलब हो जाता है. आप मंथ में क्या क्या इवेंट है उसका एक राउंड अप तो पता होता है, तो जब भी कैलेंडर में लिखती हूँ या कुछ भी होता है तो आई मेक श्योर टू हाईलाइट दोज डेज जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है या कोई एग्जाम है या कोई इवेंट है, तो वो मैं हमेशा अच्छे से हाईलाइट करके लिखती हूँ. Next question is my age and my birthday. So I am currently 17 years old. It is difficult for me to digest. I swear to God, I do not behave like a 17-year-old. मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं 18 की होने वाली कुछ टाइम पे, और मेरी हरकतें बिल्कुल वैसी नहीं है. मैं घर के कितने कम काम कर पाती हूँ, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा चीज़ें. बट येस, आई एम 17. आई एम गोना बी टर्निंग 18 ऑन 16th of December this year. So yeah, I am a 2005 वाली. But so yes, that is the thing. Oh my god, I cannot turn 18. I don't want to. But my only motivation to turn 18 years old is कि मेरे को 18 के बाद लाइसेंस मिल सकता है गाड़ी चलाने का. That is my literal only motivation कि मुझे 18 years का होना है. अगर मान लो लाइसेंस का नहीं होता ना 18 ईयर्स का, मेरे को होना ही नहीं था. कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे को 18 ईयर्स का होना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज माई 12th ग्रेड गोइंग? एंड सरप्राइजिंगली इज गोइंग decent, not bad, but it's a little tough academically, obviously, because बहुत सारी चीज़ें होती है. You need to revise your 11th also, you need to do 12th also, then सारे competitive exams आ रहे होते हैं, तो उसके से थोड़ा hectic ज़्यादा है, but it's kind of fun. I like the syllabus and the portion, and I feel कि अगर मैं बहुत ज़्यादा focus करूँगी ना, I can score really good in this grade. So I'm trying to focus. मेरे ऐसे अभी 2 exams हो चुके हैं, and I have figured out my mistakes in those कि मैंने कहाँ किस एरिया में मिस्टेक की है. So I know how to improve those, and 12th का सिलेबस बेसिकली 11th से कई गुना बेटर है. मतलब एटलीस्ट इंटरेस्टिंग तो है ना, रियल लाइफ से आप रिलेट तो कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो इसलिए दैट इज द ओनली थिंग विच इज गुड इन 12th ग्रेड. अदरवाइज इट्स जस्ट अ ग्रेड, एंड आई एम टू एक्साइटेड टू लीव स्कूल फॉर नाउ बिकॉज मेरा स्कूल से हो चुका है. मुझे अब मतलब
बस मुझे छोड़ना है स्कूल, बट एक टाइम पे मेरे को लगता है मुझे नहीं छोड़ना. आई डू नीड माई फ्रेंड्स, आई डू वॉन्ट टू गो टू स्कूल फॉर मोर ईयर्स, बट एट अ पॉइंट आई एम लाइक नो, कैन वी जस्ट एंड दिस फास्ट, बिकॉज इतने साल से मतलब एक ही मोनोटोनस रूटीन चल रहा है, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स. मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स आई हैव इन माइंड विच आई नीड टू डू, बट मेरे को उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है स्कूल की वजह से. तो दैट इज द ओनली रीजन दैट आई वॉन्ट टू एंड school fast. But yeah, my 12th grade overall is going pretty good, and yeah, I'm gonna miss this really much. So the next question is that am I a early bird or a night owl? I cannot really describe it, but ऐसे अगर देखा जाए तो I'm an early bird, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद मेरा पावर शट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली. मेरा सिस्टम का से कुछ तो इंटरनल बटन है जो ऐसे स्विच ऑफ हो जाता है. मतलब 10 बजे के बाद मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पाती. मतलब अगर आप मुझसे कुछ भी पूछ रहे हो 10 बजे के बाद, don't take my answer, because I literally cannot process my life after 10 PM. मेरी मतलब स्टार्टिंग से ही आदत है, पहले तो मैं 9:30 सो जाती थी, बट अब मैं से 10:30 हो जाता है मेरे को सोते सोते. बट ये मेरा है, मतलब 10 बजे के बाद मुझसे कुछ प्रोसेस नहीं होता, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. मतलब मैं सुबह कितनी भी जल्दी उठ सकती हूँ, मेरे को 4 बजे बोलो मैं 4 बजे उठूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. एंड ज़्यादा मेरे को पसंद भी है, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ बट सिर्फ 4 बजे उठ के मैं बैठी हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन विद दैट. बट आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा लेट नाइट तक जग पाती हूँ, अनलेस आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स अराउंड, माई फैमिली टू टॉक टू, या कुछ ऐसे एकदम हॉट टॉपिक डिस्कशन चल रहा हो, मैं तभी मैं ज़्यादा लेट तक जग सकती हूँ, वरना ऐसे मैं ज़्यादा लेट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर आर यू फ्रॉम? सो आई एम फ्रॉम बिहार, but I am currently living in Maharashtra. Well, I've been in Maharashtra since like many years, but my birthplace is Bihar. So yeah, that is the thing. You can call me a Bihari or you can call me a Maharashtrian. I'm a mix of both. But yeah, basically I'm born in Bihar, but मैं ज़्यादा टाइम उधर रही नहीं हूँ. So yeah, that is it. Next is that how do you manage YouTube stuff with science stream? You guys, it is difficult, I swear. मतलब science stream is a task. मतलब अगर आपने science ले लिया, यू कैन ओनली टेक इट अगर आपका 110% इंटरेस्ट है साइंस में. मेरा जेन्युइन रूप से मुझे साइंस बहुत पसंद है, बट देन होता है कि कभी कभी ना पढ़ाई के लिए कुछ कुछ रटनी पड़ती है, मुझे बस वो नहीं पसंद. बट मेरे को साइंस इन ऑल बहुत पसंद है, द सब्जेक्ट साइंस. बट देन साइंस इज़ वेरी हेक्टिक, यू हैव टू पुट योर डे एंड नाइट इन इट, एंड हैंडलिंग यूट्यूब विथ इट इज़ just possible because of my parents, and because मेरी mom specially, both my parents really support me in that, but my mom specifically, she films me, like if I'm studying she likes to film me, and then if she's doing something she also films it. So basically अगर मेरा free time होता है तो I edit videos, because मेरा interest area is in editing videos and stuff, so that is what I like to do. So that is how I'm able to manage. मतलब मैं अपने नीचे जाने के टाइम को कट ऑफ करके YouTube में देना पसंद करती हूँ. So that is the thing. तो you need to manage time at some other place, but it is key, if you like something you will automatically take time out for it. So that is the only thing that you also need to remember, कि ऐसा नहीं है कि 24/7 सिर्फ पढ़ते रहो. do what you like, मतलब कोई एक चीज़ को एटलीस्ट पकड़ के रखो that you like to do. अभी भी if I get even a little bit of time, I like to sketch, I like to paint. So those are the things that I love to do, and मैंने अभी भी अपना कथक क्लासेस नहीं छोड़े. So you should not zone out totally. I believe like I know there are people who totally zone out because of the studies, but I don't believe in zoning out, because मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, and मैं ऐसे मतलब that is basically the type of thing I do, and that is how I manage YouTube with studies. That is basically because of my parents. Next is how are you? Okay, yeah, that is a cute question. And how are you? I'm good. I'm very good, but rather I'm a little bit of jam packed with my studies, because my exams are never ending. मतलब मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा कौन सा महीना जब मैंने एग्जाम नहीं दिए पूरे 12th में. मतलब मैं 12th में घुसी हूँ और मैं सिर्फ एग्जाम दे रही हूँ पिछले इतने महीनों से, एंड आगे भी मुझे लगता है जून या जुलाई तक टिल नेक्स्ट ईयर मैं लिटरल हर महीने एग्जाम देने वाली हूँ. दैट इज द ओनली थिंग गोइंग ऑन. But then yeah, I am all good. Thanks for asking. Next question is that how to be productive at least 5 days a week, and what to do when we are feeling demotivated. So being productive is totally upon you, and ज़रूरी नहीं आप हर दिन productive हो. सबसे पहले ये mindset you need to remove from your mind कि you will be productive every single day. You cannot. It practically is not possible. I am also not very productive every single day. कुछ दिन तो होता है मैं कुछ नहीं करती, मैं बस बैठी रहती हूँ doing nothing. So those are also days. But to stay productive you should plan your day. That is like the major
आउटकम कि आपको प्लान करना है कि आपको क्या क्या टास्क करना है, व्हाट ऑल आर योर प्रायोरिटीज, व्हाट यू नीड टू गेट डन. सो यू प्लान दोज एंड यू विल एक्चुअली हैव द मोटिवेशन टू कंप्लीट इट. अगर आप कोई रिवॉर्ड सेट करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक इफ यू कंप्लीट दिस देन यू विल गो डाउन फॉर अ वॉक, और इफ यू कंप्लीट दिस यू मेक yourself a coffee. So you can simply set rewards for yourself and then you can do the task and plan out your task, how do you want to do it. So that is also a great way to stay motivated. I mean मैं वैसे करती हूँ and motivated रहने के लिए मेरा major thing है कि मेरी surroundings अच्छी दिखनी चाहिए. मतलब I don't think कि सबके लिए होता है but maximum लोग के लिए तो होता ही होगा that if your surrounding, I mean the area around you, if it's beautiful and aesthetic you'll feel like studying. मतलब मैंने जानबूझ के अपने रूम को एकदम से कलर कोडेड, वाइट, एस्थेटिक, काम ऐसे बनाया बिकॉज अगर वो नहीं होगा ना आई स्वेयर मैं कभी नहीं कर पाऊंगी कुछ भी. और मेरा रूम अगर मेसी भी रहता है मैं तब ही एकदम डीमोटिवेटेड रहती हूँ. तो टास्क इज टू क्लीन अप योर रूम, अच्छे से रूम साफ करो. तो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ गुड स्टेप फॉर योर मोटिवेशनल बूस्ट. सो या दैट इज वन मोर टेक्निक फॉर यू एंड इफ यू guys follow that, comment down below. Next is, do you have social life outside your family? Obviously I do. मेरे friends हैं, मैं स्कूल जाती हूँ तो social life तो होगी. मतलब I don't really hang out much. मैं उतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती. मतलब मुझे खुद भी उतना पसंद नहीं है ज़्यादा बाहर जाना. I like to hang out with my mom more than anybody else. I mean I think it's really good that my mom is like my bestie and my dad is also my best friend. मतलब ये दोनों जो मेरे मम्मी पापा है ना, best friends for life. मतलब मैं उनके साथ कभी भी जा सकती हूँ. मैं 24/7 भी उनके साथ अगर कहीं बाहर घूमने जाऊंगी ना, आई वुड नेवर गेट बोर्ड बिकॉज माई मॉम शी थिंक्स लाइक मी, आई थिंक लाइक माई मॉम. माई डैड हैज़ द सेम फूड टेस्ट एज आई हैव. तो हम लोग ऐसे जब जाते हैं तो बहुत मजा आता है एंड दैट इज वॉट माई सोशल लाइफ अगर देखा जाए तो आई डू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स अ फ्यू टाइम्स. आई लव टू हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स टू. मतलब अभी आजकल इतना टाइम नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ स्कूल बट आई वुड श्योरली लव टू गो आउट, हैंग आउट विद देम, स्पेंड टाइम विद देम आफ्टर माई स्कूल गेट्स ओवर. सो yes, we'll surely film my social life as well after 12th grade. Next is, I feel so sleepy after coming from school. How do you manage to study after coming from school? ओ माई गॉड, आई थॉट ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को है. मतलब मैं जब से 11th में आई हूँ ना, मैं बताती हूँ, मैं 10th ग्रेड तक मुझे कभी भी स्कूल के बाद नींद नहीं आती थी. मुझे दिन भर कभी नींद नहीं आती थी. मैं मस्त रात में सोती थी, सुबह उठती थी. अब मुझे सेम आवर्स की स्लीप होती है रात में भी, बट फिर भी मुझे स्कूल से आने के बाद इतनी नशे वाली नींद आती है. मतलब मुझे लगता है मैं बस आऊँ और मैं ऐसे बेड पे बैठती हूँ, मुझे नींद आती है. इतनी गंदी वाली. मतलब मेरे को कभी नहीं. कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मैं स्कूल से अगर 2 बजे आई हूँ, मैं 3 बजे सो जाती हूँ और उसके बाद मैं 7 बजे उठी हूँ. मतलब इतनी नींद आती है मेरे को अभी. एंड ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि मेरे को उतने टाइम में पढ़ लेना चाहिए, बट मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आती है उस टाइम में. तो अगर आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो प्लीज़ मेरे को बता दो क्योंकि जेन्युइनली इसके लिए टिप्स तो मेरे को भी चाहिए. नेक्स्ट इज, व्हाट इज माई फेवरेट स्टारबक्स कॉफ़ी. स्टारबक्स में उतना पीती नहीं. आई मीन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ओवररेटेड. आई मेक बेटर कॉफ़ी देन स्टारबक्स. तो अगर आपको मेरी कॉफ़ी रेसिपी जाननी है, आई लेट यू नो दैट. बट स्टारबक्स का मैं ऐसे पीती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं पीती, बट ऐसे कोई फेवरेट ऑर्डर टाइप्स नहीं है मेरा. मेरे को जो उस दिन पीने का मन करेगा, अगर नॉर्मल क्या मैं एस्प्रेसो तो मैं नहीं, क्या पीती हूँ, लाटे नहीं, मैं फ्रापेचिनो. यस, मैं नाम याद गई थी. मेरे को स्टारबक्स की एक फ्रैप है, वो बहुत टेस्टी होती है. आई डोंट रिमेंबर द नेम बट देयर इज दिस वन फ्रैप विच आई रियली लव. आई थिंक इट्स चॉकलेट का कुछ, तो आई डोंट रिमेंबर, बट एक फ्रैपेचिनो है, वो बस अच्छा लगता है एंड वो भी ठीक ही है. मतलब मैं बेटर कॉफी बनाती हूँ स्टारबक्स से. तो अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. नेक्स्ट इज माई फेवरेट डेस्टिनेशन. तो फेवरेट डेस्टिनेशन में से ज़्यादा इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इंडिया तो आई रियली वॉन्ट टू विजिट कश्मीर एंड द नॉर्थ पार्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. दैट इज़ माई गोल कि मेरे को ऐसे विजिट करना है जल्दी से जल्दी. मेरे को वैष्णो देवी जाना है, मेरे को अमृतसर जाना है. दीज आर द प्लेसेज ऑन माई टू डू लिस्ट कि मेरे को जाना ही है. एंड देन मेरे को आउट ऑफ इंडिया आई वांट टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड. आउट ऑफ इंडिया तो मेरे को कहीं भी ले जाओ, मैं कोई जगह नहीं घूमी. आई जस्ट बीन टू दुबई, लाइक जो मैंने दिखाया था आपको, व्लॉग भी किया था मैंने. बट मेरे को बाकी सारी जगह जाना है. इसमें टॉप लिस्ट पे आई वॉन्ट टू गो टू स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में देयर आर मेनी पीपल हु लिव देयर. तो आई वॉन्ट टू go there and meet them also. And Switzerland is there because Switzerland is just too pretty to not go, so I want to go there. Paris भी मेरे को जाना है, but honestly speaking मेरा Paris का उतना ऐसे मन टाइप का नहीं है because it is just not my thing. मेरे को Paris में I don't think उतना मजा आएगा जितना मेरे को Switzerland साइड में आएगा. And London, yes, London is a good place. I want to go there. I want to go to New York City. That is my vibe. I really want to go to New York and let's see if we are able to make this bucket list. So let's just support us. What if we
go on a world expedition. मैं बहुत सोचती हूँ ये सब, जस्ट मतलब सब सोचते होंगे कि मुझे इधर उधर जाना है, सब जगह घूम लेंगे हम. ओके, तो एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, लेट्स जस्ट आंसर एक लास्ट वाला कि मुंबई और माई होम टाउन, मतलब दे आर आस्किंग फॉर अ कंपैरिजन बिटवीन मुंबई और माई होम टाउन. तो बोथ आर डिफरेंट. आई कैन नॉट से दैट आई डोंट लाइक माई होम टाउन. आई लव माई होम टाउन. आई ऑलवेज लव टू विजिट देयर. मतलब थोड़ा है कचकच वाली जगह तो है, बट मेरे को बहुत पसंद है. मतलब वो अलग ही फीलिंग आती है उधर जाके. मेरे को बहुत मज़ा आता है वहाँ जाती हूँ. मेरे सारे कजन्स, मेरे पूरी फैमिली एक्चुअली बिहार में रहती है, तो मुझे वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है. बट देन मुंबई इज़ ऑल्सो अ वेरी फेवरेट प्लेस ऑफ माइंड. मतलब मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है, बिकॉज वी लिव रियली क्लोज टू मुंबई. हमारे घर से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उधर पहुँचने में, तो इट्स अ वेरी नाइस ट्रांजिशन टू गो. बट देन माई होम टाउन, like I just cannot compare between those two places. I love both of them really much. If I have missed any, you can just comment that down below, and I think we'll end this video right here. So I'll meet you guys in the next video. Till then, stay safe and keep watching, and make sure to comment down this for a shout out in the next video. Yes, so stay safe and keep watching. Bye bye.